Dear students, today we are going to read the lesson Silk Road, written by Nick Middleton. This chapter forms only a small part of the author's travelogue. He was following the same route that was known as the Silk Route or the Silk Road in ancient times. It was a trade route that linked China with the West. It was a 6,400 kilometers caravan track beginning from Xi'an, China, and ending at the Mediterranean Sea. It came to be called Silk Route because along this route, silk, wool, gold, silver, and other valuable items were taken westward. It was also instrumental in spreading religions like Christianity and Buddhism throughout the region it served. इस लेख में लेखक की यात्रा वृतांत का एक छोटा हिस्सा दिया गया है। यह उसी मार्ग से जा रहा था जिसे प्राचीन समय में सिल्क रूट या सिल्क रोड कहा जाता था। यह एक व्यापारिक रास्ता था जो चीन को पश्चिमी देशों के साथ जोड़ता था। यह 6400 किलोमीटर लंबा बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ियों वाला रास्ता था जो चीन में सियान से शुरू होकर भूमध्य सागर तक पहुंचता था। इसे सिल्क रूट इसलिए कहा जाने लगा क्योंकि इस रास्ते से पश्चिमी देशों को सिल्क, ऊन, सोना, चांदी इत्यादि बहुमूल्य वस्तुएं ले जाया जाता था। इस मार्ग ने ईसाई और बौद्ध धर्म के विस्तार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उन जगहों पर जहां से यह गुजरता है। The author here describes only a small part of his journey from Rabu, a small mountain village, to Darchen at the foot of Mount Kailas. His taxi driver Zetan, who had brought him all the way from Lhasa, went back after dropping him at Darchen. From here, the author intended to do the Kora pilgrimage on foot, पदयात्रा करने की सोची, to Mount Kailas after a rest of a day or two. The author had heard a lot about the beauty of Lake Mansarovar and the holy pilgrimage to Mount Kailas, but his own experience was quite the opposite. He found the place very dirty and uninspiring. It was an off-season time and he could meet only one fellow pilgrim there who had come to do the Kora, and he too was not very enthusiastic about it. About the author, Nick Middleton is a British physical geographer. He is a supernumerary fellow at St. Anne's College, Oxford, and specializes in desertification. He was born in 1960 in London, England. He has written numerous books on world geography, including Silk Road. He has also starred in a television program about surviving in extreme climate called Going to Extremes. Theme of the lesson. This article gives an account of a journey from the gently rolling hills of Rabu to Mount Kailas. The narrator wanted to complete the Kora at Mount Kailas. Lamo gave him a long-sleeved sheepskin coat to keep him warmer. He hired Setan car and took Daniel as a companion for escorting him up to Darchen. The narrator seems to be a lover of adventure who is not at all afraid of taking risks. Now we will study the chapter in detail. A flawless half moon floated in a perfect blue sky on the morning we said our goodbyes. उस सुबह जब हमने एक दूसरे को अलविदा कहा, साफ नीले आसमान में आधा चंद्रमा तैर रहा था। फ्रांस की डबल रोटियों की तरह दिख रहे बादलों के झुंड गुलाबी आभा से दमक रहे थे जब दूर स्थित पहाड़ी चोटियों को गुलाबी रंगत देता हुआ सूरज निकल आया। Extended banks of cloud like long French lobes glowed pink as the sun emerged to splash the distant mountain tops with a rose tinted blush. गुलाबी आभा लिए हुए पहाड़ी श्रृंखला दिख रही थी। Now that we were leaving Rabu, अब हम लोग राबू से निकल रहे थे। Lamo said she wanted to
गिव मी ए फेयरवेल प्रेजेंट। रामो ने कहा कि वह मुझे एक उपहार देना चाहती थी। वन इवनिंग I told her through Daniel that I was heading towards Mount Kailash to complete the Kora। जब मैंने डेनियल के माध्यम से पिछले दिनों शाम को मैंने उसे बताया कि मैं कोरा तीर्थ करना चाहता हूं, उसको पूरा करने के लिए कैलाश पर्वत की ओर जा रहा था। एंड शी हैड सेड दैट आई ऑफ टू गेट सम वार्मर क्लॉथ्स, और उसने कहा कि मुझे कुछ गर्म कपड़े ले लेने चाहिए। आफ्टर डगिंग बैक इनटू हर टेंट शी इमर्ज्ड, झुककर अपने तंबू के अंदर घुसने के बाद वो वहां से एक भेड़ की खाल से बना कोट ले आई। कैरिंग आउट ऑफ द लॉन्ग स्लीव शीप स्किन कोट्स दैट ऑल द मेन वोर, जो वहां के सभी पुरुष लोग पहनते थे। जेतन साइज्ड मी अप एज वी क्लैम्बर्ड इनटू हिज कार। जब हम लोग कार में बैठे, जेतन ने कहा कि हाँ, यह बिल्कुल आपको फिट आएगा श्रीमान। ड्रोकबा सर, he declared, Drogba sir. We took a shortcut to get off the Changtang. Zetan knew a route there to take us southwest, almost directly towards Mount Kailash. हम चांगतांग से निकलने के लिए एक छोटा रास्ता ले लिया। जेतन एक रास्ता जानता था जो हमें दक्षिण पश्चिम में ले जाता, लगभग सीधे कैलाश पर्वत की तरफ। It involved crossing severely fairly high mountain passes, he said. उस रास्ते में कई काफी ऊंची पहाड़ी दर्रों को पार करके जाना था। He said, but no problem sir. उसने कहा श्रीमान, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। He assured us. उसने हमें आश्वासन दिया। If there is no snow, अगर वहां पे बर्फ नहीं पड़ी होगी तो कोई मुश्किल नहीं होगी। What was the likelihood of that, I asked. मैंने उससे पूछा कि बर्फ गिरने की क्या संभावना थी, क्या वहां बर्फ मिल सकती है। Not knowing sir, until we get there. उसने कहा कि श्रीमान जी, तब तक हम नहीं बता सकते जब तक हम वहां नहीं पहुंचते। From the gently rolling hills of Rabu, the shortcut took us across vast open plains with nothing in them except a few gazelles that would look up from nibbling the arid pastures and frown before bounding away into the void। राबू की हल्की हल्की बल खाती पहाड़ियों से होते हुए वह छोटा रास्ता हमें दूर दूर तक फैले हुए उन खुले मैदानों से पार ले गया, जहां सिवाय छोटे छोटे बारहसिंगों के, गैजल्स के और कुछ भी नहीं था, जो झुलसे हुए चारागाहों यानी सूखे चारागाहों की घास कुतरते हुए नजर उठाकर हमारी तरफ देखते और हमारी ओर गुस्से से त्योरियां चढ़ाते हुए तेज तेज कदमों से भागते हुए मानो शून्य में समा जाते। फर्दर ऑन, where the plains became more stony than grassy, a great herd of wild ass came into view. Zetan told us we were approaching them long before they appeared. उससे आगे, जहां मैदानों में घास से ज्यादा पत्थर नजर आते जा रहे थे, जंगली गधों का एक बड़ा झुंड दिखाई दिया। जेतन ने हमें बताया कि हम उनके उस स्थान पर आने के पहले ही उनके नजदीक पहुंच रहे थे। क्या, he said, उसने कहा देखिए, पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए फार ऑफ पॉल ऑफ डस्ट। उसने बहुत दूर से धूल के गुबार की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखिए श्रीमान। व्हेन वी ड्रू नियर, और जब हम वहां नजदीक पहुंचे, आई कुड सी द हर्ड गैलोपिंग एंड मास, तो मैं उस पूरे झुंड को एक साथ सरपट भागते देख सकता था। व्हीलिंग एंड टर्निंग इन ए टाइट फॉर्मेशन एज इफ दे वेर प्रैक्टिसिंग मैनोवर्स ऑन सम प्रीडिटरमाइंड कोर्स। मानो एक पहले से तय किए हुए रास्ते पर युद्धाभ्यास कर रहे थे। धूल के कोमल पंख कुरकुरी साफ हवा में ऊपर उठते जा रहे थे। Plumes of dust billowed into the crisp clean air. As hills started up to push up once more from the rocky wilderness, जैसे जैसे एक बार फिर चट्टानी सुनसान जगहों से पहाड़ियों ने सिर उठाना शुरू किया, हम अकेले ही अपने पशुओं के झुंडों का ख्याल रखते हुए चारागाहों के पास से गुजरे। Sometimes men, sometimes women, then well-wrapped figures would pause and stare at our car. कभी तो पुरुष और कभी महिलाएं वस्त्रों से पूरी तरह ढके हुए रुक जाते और हमारी कार को ध्यान से देखते। Stare at our car, occasionally waving as we passed, और इशारा करते। When
the track took up close to their animals, the sheep would take evasive action, veering away from the speeding vehicle. और और जब हमारा रास्ता हमें उनके पशुओं के करीब ले जाता तो भेड़ें वहां से बच निकलने की कोशिश करती और हमारी तेज गति से जाती हुई कार की तरफ से तेजी से मुड़कर दूर चली जाती. The beginning of the journey, the narrator wanted to go to Mount Kailas to complete the Kura. As a farewell gift, Lamo gave him a long-sleeved sheepskin coat. He hired Zetan to drive him up to Mount Kailas and took Daniel as his companion to Darchen. Zetan took a shortcut to the southwest to get to Mount Kailas quicker. It required them to cross high mountain passes, but Zetan assured that it wouldn't be a problem if there is no snow. They crossed through a few gazelles, a herd of wild asses, and shepherds tending the flocks. We passed nomads, dark tents pitched in splendid isolation. हम शानदार एकांत स्थान पर गड़े हुए खाना बदोशों के अंधेरे तंबुओं के पास से गुजरे. नोमड्स, खाना बदोश जो टेंट कहीं भी लगा करके घूमते हैं, कहीं भी ये घूमते रहते हैं, पूरे जगहों पर टेंट लगा लेते हैं सुनसान इलाकों में और रहते हैं. स्प्लेंडिड आइसोलेशन, यूजुअली विथ ए ह्यूज ब्लैक डॉग, और आमतौर पर इनके पास एक बहुत विशाल कुत्ता होता है. ए तिब्बतन मैस्टिफ स्टैंडिंग गार्ड, एक तिब्बतन नस्ल का डॉग मैस्टिफ कहलाता है, गार्ड के रूप में इनके पास होता है. These beasts would cock their great big heads when they became aware of our approach and fix us in their sights. ये जानवर अपने बड़े बड़े सिरों को तिरछा तान लेते जब वे हमारे पहुंचने के बारे में जान लेते कि कोई आ रहा है और हमें अपनी नजरों के निशाने पर ले लेते. घूरते रहते. जैसे ही हम उनके और नजदीक जाना जारी रखते वे एकदम से हरकत में आ जाते. As we continued to draw closer, they would explode into an action, speeding directly towards us like a bullet from a gun and nearly as fast. सीधे हमारी तरफ तेज तेज दौड़ने लगते मानो किसी बंदूक से गोली निकली हो, और लगभग उतनी ही गोली की तीव्र गति से हमारी तरफ आते. These saggy monsters, blacker than the darkest night, usually wore bright red collars and barked furiously with massive jaws. ये झबरीले विशाल काय कुत्ते के गले में, और ये कुत्ते जो काली रात से भी ज्यादा काले थे, सामान्यतः चमकीले लाल पट्टे होते, इनके गर्दन में लाल रंग के पट्टे बंधे होते और वे अपने विशाल जबड़े खोले हुए भयानक ढंग से भौंकते. Bark furiously with massive jaws. They were completely fearless of our vehicle, और वे हमारे वाहन से जरा सा भी नहीं डरते और तीर की तरफ भागते हुए हमारे रास्ते में आ जाते थे. Shooting straight into our path, causing Zetan to brake and swerve, जिससे जेतन को तीव्र चलती हुई गाड़ी को तुरंत ब्रेक लगाना पड़ता और मोड़ना पड़ता. The dog would make chase for 100 meters or so before easing off, और ये कुत्ते 100 मीटर तक लगभग दौड़ाते हुए पीछे आते इसके पहले कि हम वहां से निकलते. वो ढीले पड़ते, 100 मीटर तक की दूरी तक को पीछा करते. Having seen us off the property, जब वो देख लेते कि हाँ वो उनकी प्रॉपर्टी से दूर हो गए. It was not difficult to understand why ferocious Tibetan mastiffs became popular in China's imperial court as hunting dogs. यह समझना मुश्किल न था क्यों ऐसे भयानक तिब्बती मैस्टिफ नस्ल के कुत्तों को शिकारी कुत्तों के रूप में चीन के शाही दरबारों में ले आया गया था, जो बड़े लोकप्रिय थे, जिन्हें पुराने समयों में सिल्क रोड, ये जो व्यापारिक मार्ग था, से होते हुए कर टैक्स के रूप में तिब्बत से लाया जाता था. Silk Road in ancient times as tribute from Tibet. By now, we could see snow-capped mountains gathering on the horizon. इस समय तक हमें दूर क्षितिज में उभरते हुए बर्फ की चोटियों वाले पहाड़ों को हम देख पा रहे थे, दिखाई दे रहे थे. We entered a valley where the river was wide. हम एक घाटी में प्रवेश किए जहां एक नदी, चौड़ी नदी मिली, mostly clogged with ice, जो बर्फ से ढकी हुई थी, जमी हुई, पानी जमा हुआ था बर्फ की. Brilliant white and glinting in the sunshine, एकदम सफेद कलर में जो सूर्य की रोशनी में चमक रहा था. The trail hugged its bank, twisting with the meanders as we gradually gained height, and the valley sides
closed in. रास्ता नदी तट का मानो आलिंगन कर रहा था और नदी के मोड़ों के साथ ही घूमता जा रहा था जब हम धीरे धीरे और ऊंचे चढ़ते जा रहे थे और घाटी के छोर हमारे नजदीक आते जा रहे थे. The turns became sharper and the ride bumpier. वहां से निकल करके मोड़ ज्यादा तीखे होते गए और हिचकोले भी ज्यादा तेज हो गए. चेतन नाउ इन थर्ड गियर एज वी कंटिन्यू टू क्लाइंब. चेतन ने कार को तीसरे गियर में डाल दिया और हमने और ऊंचा चढ़ना जारी रखा. द ट्रैक मूव्ड अवे फ्रॉम द आइसी रिवर. रास्ता अब उस बर्फीली नदी से दूर हटता गया. लेबरिंग थ्रू स्टीपर स्लोप्स दैट स्पोर्टेड बिग रॉक्स डॉप्ड with patches of bright orange lichen. रास्ता अब उस बर्फीली नदी से दूर हटता गया और मुश्किल से और ज्यादा तीखी ढलानों में से जगह बनाता रहा जिसमें बड़ी बड़ी चट्टानें थीं जिनमें चमकदार नारंगी रंग की झाड़ियों के क्षेत्र भी कहीं कहीं नजर आ जाते थे. चट्टानों की निचली तरफ बर्फ के पिंड चिपटे हुए थे और वहां लगभग स्थायी रूप से अंधेरी छाया का साम्राज्य था. Beneath the rocks, hunks of snow clung on in the near permanent shade. I felt the pressure building up in my ears, held my nose, snorted and cleared them. We struggled round another tight bend and Zetan stopped. मैंने अपने कानों में दबाव को बढ़ता हुआ महसूस किया, अपनी नाक को पकड़कर भींचा, फुफकार भरी और कानों पर पड़ा दबाव दूर कर दिया. हमने एक और तीखा मोड़ काटने के लिए संघर्ष किया और जेतन ने कार रोक दी. He had opened his door and jumped out of his seat before I realized what was going on. Snow, said Daniel as he too exited the vehicle, letting in a breath of cold air as he did so. उसने अपना दरवाजा खोल दिया और अपनी सीट से उछलकर बाहर आ गया था, इससे पहले कि मैं समझ पाता कि वहां क्या चल रहा था. बर्फ, डेनियल ने कहा जबकि वह भी वाहन से बाहर निकल आया और ठंडी हवा का एक झोंका कार के अंदर आ गया जब उसने ऐसा किया. A swath of the white stuff lay across the track in front of us, stretching for maybe 15 meters before it petered out and the dirt trail reappeared. उस सफेद पदार्थ बर्फ की एक लंबी पट्टी हमारे सामने की तरफ रास्ते के आर पार पड़ी हुई थी जो करीब 15 मीटर तक फैली हुई थी, इससे पहले कि वह कम होना शुरू होती और धूल भरा रास्ता एक बार फिर से प्रकट हो जाता. The snow continued on either side of the smoothing the abrupt bank on the upslope side. The bank was too steep for our vehicle to scale, so there was no way round the snow patch. दोनों बर्फ हमारे दोनों तरफ रास्ते पर दूर दूर तक पड़ी हुई थी और चढ़ाई के शुरू होने के बिंदु तक चिकनी समतल फैली हुई थी. तट इतनी तीखी चढ़ाई वाला था कि हमारी कार उस पर नहीं चढ़ सकती थी, इसलिए उस बर्फीले रास्ते से घूमकर जाने का भी कोई रास्ता नहीं था. I joined Daniel as Zetan stepped onto the encrusted snow and began to slither and slide forward, stamping his foot from time to time to ascertain how sturdy it was. I looked at my wristwatch. We were at 5,210 meters above sea level. मैं डेनियल के साथ मिल गया जबकि जेतन ने पपड़ी बन गई बर्फ पर कदम रख दिए और फिसलते और सरकते हुए आगे बढ़ने लगा, यदाकदा अपने पैरों को पटकते हुए यह निश्चित करने के लिए कि बर्फ कितनी ठोस थी वहां पर. मैंने अपनी कलाई घड़ी पर नजर डाली, उसमें स्थान की ऊंचाई बताने का यंत्र भी लगा था. हम समुद्र तल से 5210 मीटर की ऊंचाई पर थे. The snow didn't look too deep to me, but the danger was not its depth, Daniel said, so much as its ice top layer. If we slip off, the car could turn over, he suggested as we saw Zetan grab handful of dirts and flying them across the frozen surface. मुझे बर्फ ज्यादा गहरी नहीं लगी, लेकिन डेनियल के अनुसार इसकी गहराई का खतरा इतना बड़ा नहीं था जितना कि इसकी ऊपरी बर्फीली तह का. अगर हम फिसल गए तो कार उलट भी सकती है, उसने कहा जबकि हमने जेतन को जल्दी से मुट्ठियां भर भर कर मिट्टी की को जमी हुई सतह पर फेंकते हुए देखा. We both pitched in, and when the snow was spread with soil, Daniel and I stayed out of the vehicle to lighten Zetan's load. He backed up and drove towards the dirty snow, eased the car onto its icy surface, and slowly drove its length without apparent difficulty. हम दोनों भी उस काम में जुट गए.
मिट्टी को बर्फ पर डालने लगे और जब बर्फ पर मिट्टी पूरी तरह बिछ गई तो मैं और डैनियल कार से बाहर ही रुके रहे ताकि जेतन कार समेत, क्योंकि उसका वजन कम हो जाता और उसने कार को पीछे किया और उस मिट्टी भरी बर्फ की तरफ कार को बढ़ाने लगा। कार को हल्की गति पर बर्फीली सतह पर बर्फ की पूरी लंबाई पर चलाता गया, जिससे कोई विशेष कठिनाई नहीं दिख रही थी। Ten minutes later, we stopped at another blockage. Not good, sir, Zetan announced as he jumped out again to survey the scene. This time, he decided to try and drive round the snow. उसके 10 मिनट बाद हम एक और बाधा पर रुक गए। यह कुछ अच्छी बात नहीं है श्रीमान, जेतन ने घोषणा की बताया, और यह वह दृश्य का निरीक्षण करने के लिए एक बार फिर कूदकर बाहर आ गया। इस बार उसने बर्फ की बाहरी सतह तरफ से घूमकर आने का फैसला किया। This time he decided to try and drive round the snow. The slope was steep and studded with major rocks, but somehow Zetan negotiated them, his four-wheel drive vehicle lurching from one obstacle to the next. In so doing, he cut off one of the hairpin bends, regaining the trail further up where the snow had not drifted. ढलान तीखी थी और रास्ते में बड़ी बड़ी चट्टानें थीं, लेकिन किसी न किसी तरह से जेतन ने उनमें से रास्ता बना लिया, जिस दौरान उसकी 4 व्हील ड्राइव वाली कार एक बाधा से दूसरी बाधा तक हिचकोले खाती रही। ऐसा करते हुए उसने एक बहुत बड़ा तीखा मोड़ तेजी से काट लिया और दोबारा रास्ते पर और ऊपर आ गया, जहां बर्फ नहीं पहुंच पाई थी। I checked my watch again as we continued to climb in the bright sunshine. We crept past 5,400 meters and my head began to throb horribly. I took gulps from my water bottle, which is supposed to help a rapid ascent. मैंने फिर से अपनी घड़ी की तरफ देखा, जबकि हमने चमकीली धूप से ऊपर चढ़ना जारी रखा। हम रेंगने वाली चाल से 5400 मीटर की ऊंचाई की बगल से गुजर गए और मेरा सिर भयानक रूप से फड़कने लगा। मैंने अपनी पानी की बोतल में से कई घूंट लिए। जैसा करने से माना जाता है कि तेज चढ़ाई में मदद मिलती है। The shortcut through the mountain pass. On the way, they passed dark tents that were home to nomads being guarded by Tibetan mastiffs that would run towards the car when they got close. As they entered the valley, they were surrounded by snow-capped mountains, rivers blocked by ice, the roads were bumpier and the turns were getting sharper. The narrator could feel the pressure in his ears and he snorted to clear the congestion. They were at 5,210 meters altitude. On the way, they had multiple stops. Zetan threw some dirt over a snow-covered road so that they could drive over it. Next, they stopped at a petrol station where the fuel tank hissed upon opening as the lower atmosphere pressure was allowing the fuel to expand. The narrator's head had begun to ache at such high altitudes but started to clear as they started descending the other side of the pass. A shortcut through the mountain pass. We finally reached the top of the pass at 5,515 meters. It was marked by a large cairn of rocks. अंत में हम 5515 मीटर की ऊंचाई पर स्थित दर्रे की चोटी पर पहुंच गए। इसमें स्पष्ट दिख रहा था बड़े बड़े पत्थरों का एक टीला था, जिस पर सफेद रेशमी चुनरियों की झालरें तथा चिथड़े हो चुकी प्रार्थना की झंडियां लगी हुई थी, festooned with white silk scarves and ragged prayer flags. We all took a turn round the cairn in a clockwise direction as is the tradition, and Zetan checked the tires on his vehicle. He stopped at the petrol tank and partially unscrewed the top, which emitted a loud hiss. The lower atmospheric pressure was allowing the fuel to expand. It sounded dangerous to me. Maybe, sir, Zetan laughed, but no smoking. जैसी की परंपरा है, हम सभी ने घड़ी की सुइयों वाली दिशा में टीले की परिक्रमा की और जेतन ने अपने वाहन के टायरों की जांच की। वह पेट्रोल की टंकी पर पहुंचकर रुक गया और उसने उसके ढक्कन का पेंच थोड़ा सा ढीला किया, जिससे ऊंची आवाज में फुफकारने जैसी आवाज पैदा हुई। वायुमंडल का कम हो गया दबाव ईंधन का आयतन बढ़ा रहा था। ऐसा होना मुझे खतरनाक लगा। हो सकता है श्रीमान,
चेतन हंसकर कहने लगा, लेकिन धूम्रपान न करें। My headache soon cleared as we carried down the other side of the pass. It was 2 o'clock by the time we stopped for lunch. मेरा सिर दर्द जल्दी ही दूर हो गया था। जब हम दर्रे की दूसरी तरफ से तेजी से नीचे उतर रहे थे, उस समय तक 2 बज गए थे जब हम लंच के लिए रुके। We ate hot noodles inside a long canvas tent, part of a work camp erected beside a dry salt lake. हमने उस मोटे खुरदरे कपड़े के लंबे तंबू के अंदर गर्म नूडल्स खाए, जो कि कर्मचारियों के कैंप का एक भाग था और एक सूखी खारे पानी वाली झील की बगल में स्थापित था। The plateau is pockmarked with salt flats and brackish lakes, vestiges of the Tethys Ocean which bordered Tibet before the great continual collision that lifted it skyward. वह पठार नमक के ढेरों और खारे पानी वाली झीलों से भरा हुआ था, जो कि टैथिस महासागर के अवशेष थे, जो महान महाद्वीपीय टक्कर के समय से पहले तिब्बत की सीमा पर स्थित हुआ करता था। उस टक्कर ने उसे आकाश की तरफ ऊंचा उठा दिया था। यह पठार व्यस्त गतिविधियों का क्षेत्र था, जहां पुरुष फावड़े था कुदाले लिए हुए और भेड़ की खाल से बने कोट और नमक की पपड़ियों से भरे हुए जूते पहनकर पैर घसीटते हुए इधर से उधर आ जा रहे थे। This one was a hive of activity, men with pickaxes and shovels trudging back and forth in their long sheepskin coats and salt-encrusted boots. All wore sunglasses against the glare as a steady stream of blue trucks emerged from the blindingly white lake laden with piles of salt. सभी ने धूप की तेज चमक से बचने के लिए धूप के चश्मे पहने हुए थे और उस दौरान नीले ट्रकों की मानो एक अनवरत धारा अंधा कर देने वाली सफेद झील की तरह से निकलकर आती जा रही थी, जिसमें नमक के ढेर भरे हुए थे। By late afternoon, we had reached the small town of Hot back on the main east-west highway that followed the old trade route from Lhasa to Kashmir. तीसरे पहर के अंत तक हम होर नामक छोटे शहर पहुंच गए, वापस उस मुख्य पूर्व पश्चिम मुख्य मार्ग पर जो लासा से कश्मीर जाने वाले पुराने व्यापारिक रास्ते का अनुसरण कर रहा था। Daniel, who was returning to Lhasa, found a ride in a truck, so Zetan and I bade him farewell outside a tire repair shop. Daniel को जिसने वापस लासा जाना था, एक ट्रक में सवारी मिल गई, इसलिए जेतन और मैंने उसे टायरों की मरम्मत करने वाली एक दुकान के बाहर से अलविदा कहा। We had suffered 2 punctures in quick succession on the drive down from the Salt Lake, and Zetan was eager to have them fixed since they left him with no spares. हमने कुछ ही समय के बाद एक कार के 2 पंक्चर झेले, जिस दौरान हम नमक की झील की तरफ से नीचे आ रहे थे और जेतन व्यग्र था कि पंक्चर लगवा लिया जाए, क्योंकि उसके पास कोई अतिरिक्त टायर नहीं रह गए थे। इसके अलावा वह दूसरा टायर जिसे उसने बदला था, उसकी जगह लगने वाला टायर उतना ही समतल चिकना था जितना कि मेरा गंजा सिर। Chetan was eager to have them fixed since they left him with no spares. Besides, the second tire he had changed had been replaced by one that was as smooth as my bald head. Hor was a grim, miserable place. There was no vegetation whatsoever, dust and rocks liberally scattered with years of accumulated refuse, which was unfortunate given that the town sat on the shore of Lake Mansarovar. Hor एक घिनौना और बेकार सा स्थान था। वहां पर किसी भी प्रकार की कोई वनस्पति नहीं थी, कोई वेजिटेशन नहीं थी, सिर्फ धूल और चट्टानें थीं, जहां वर्षों से कर्तित कूड़ा कचरा बड़ी मात्रा में इधर उधर बिखरा पड़ा था, जो एक दुर्भाग्यपूर्ण बात थी, क्योंकि वह कस्बा मानसरोवर झील के किनारे पर स्थित है, जिसे तिब्बत का सर्वाधिक सम्मानित जल का विस्तार माना जाता है। Set on the shore of Lake Mansarovar, Tibet's most venerated stretch of water. Ancient Hindu and Buddhist cosmology pinpoints Mansarovar as the source of 4 great Indian rivers, the Indus, the Ganges, the Satluj and the Brahmaputra. पुरातन काल के हिंदू तथा बौद्ध शास्त्र मानसरोवर को दृढ़ता से भारत की 4 महान नदियों का स्रोत मानते हैं, सिंधु, गंगा, सतलज तथा ब्रह्मपुत्र. Actually, only the Satluj flows from the lake, but the headwaters of the others all rise nearby on the flanks of Mount Kailas. We were within
striking distance of the great mountain, and I was eager to forge ahead. लेकिन बाकी सभी नदियों का जल नजदीक ही के कैलाश पर्वत के दोनों तरफ से निकलता है। हम उस महान पर्वत के बहुत नजदीक पहुंच गए थे और मैं और आगे चलते जाने के लिए बेताब था। I was served by a Chinese youth in military uniform who spread the grease around on my table with a filthy rag before bringing me a glass and a thermos of tea. मुझे चाय की उस चीनी युवक ने परोसी जिसने फौजी वर्दी पहनी हुई थी और जिसने मुझे एक गिलास और चाय का एक थर्मस देने से पहले एक गंदे से चिथड़े कपड़े से मेरी मेज पर चारों तरफ चिकनाई फैला दी। Half an hour later, Zetan relieved me from my solitary confinement, and we drove past a lot more rocks and rubbish westwards out of town towards Mount Kailas. आधे घंटे के बाद जेतन ने मुझे एकांत कैद से मुक्त कर दिया और हम और भी ज्यादा चट्टानों और कूड़े कचरे के पास से गुजरते हुए शहर के बाहर पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए कैलाश पर्वत की तरफ कार में चल पड़े। My experience in Hor came as a stark contrast to accounts I had read of earlier travelers' first encounters with Lake Mansarovar. होर में हुआ मेरा अनुभव उन वृत्तांतों के बिल्कुल विपरीत था जो मैंने पहले के यात्रियों द्वारा मानसरोवर झील की प्रथम यात्राओं के विषय में पढ़ रखे थे। इकाई कावागुची, a Japanese monk who had arrived there in 1900, was so moved by the sanctity of the lake that he burst into tears. इकाई कावागुची एक जापानी मठवासी जो वहां 1900 में पहुंचा था, उस झील की पवित्रता से इतना अभिभूत हुआ कि वह फूट फूट कर रोने लगा। A couple of years later, the hallowed waters had a similar effect on Sven Hedin, a Swede who was not prone to sentimental outburst. उसके 1-2 सालों के बाद उस पवित्र जलमंडल ने वैसा ही प्रभाव स्वेन हेडिन पर डाला जो कि स्वीडन वासी था और जल्दी ही भावनाओं के वश में आने वाला व्यक्ति नहीं था। It was dark by the time we finally left again, and after 10:30 p.m. we drew up outside a guest house in Darchin for what turned out to be another troubled night. उस समय तक अंधेरा छा चुका था और हम एक बार फिर रवाना हुए और रात के 10:30 बजे के बाद हम दर्शन के एक अतिथि गृह के बाहर पहुंचे। Kicking around in the open air rubbish dump that passed for the town of Hor had set off my cold once more, though if truth be told it had never quite disappeared with my herbal tea. वह रात एक बार फिर हमारे लिए कष्टकारी रात थी। कूड़े कचरे के उस बड़े ढेर में से मुश्किल से चलते हुए जिसे होर कस्बे का नाम दे दिया गया था, जुकाम ने मुझे एक बार फिर जकड़ लिया। हालांकि अगर सच कहा जाए तो वह जुकाम मेरी जड़ी बूटी वाली चाय से पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था। One of my nostril was blocked again as I lay down to sleep. I was not convinced that the other would provide me with sufficient oxygen. मेरी जड़ी बूटी वाली चाय से मैं पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था। मेरा एक नाक फिर से अवरुद्ध हो गया था और जब मैं सोने के लिए लेटा तो मैं नहीं मान पा रहा था कि दूसरी नाक भी मुझे पर्याप्त ऑक्सीजन दे पाएगी। My watch told me I was at 4,760 meters. घड़ी देखने के बाद मुझे पता चला कि मैं 4760 मीटर की ऊंचाई पर था। It was not much higher than Rabu, and there I had been gasping for oxygen several times every night. वह स्थान राबू से बहुत ज्यादा ऊंचाई पर नहीं था और मैं वहां पर हर रात कई बार ऑक्सीजन के लिए जोर जोर से सांसें लेता रहता था। I had grown accustomed to these nocturnal disturbances by now, but they still scared me. मैं अब तक इन रात्रिकालीन परेशानियों का आदी हो चुका था, लेकिन अभी भी मुझे उस परेशानियों से डर लगता था। Tired and hungry, I started breathing through my mouth. After a while, I switched to single nostril power, which seemed to be admitting enough oxygen, but just as I was drifting off, I woke up abruptly. मैं थका मादा और भूखा था, तब मैंने मुंह द्वारा सांस लेना शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद मैंने इकलौते अपनी नाक द्वारा सांस लेना शुरू कर दिया, जिससे मुझे लगा कि मुझे पर्याप्त ऑक्सीजन मिलने लगी थी। लेकिन ज्यों ही मुझे नींद आने वाली थी, मैं अचानक ही जाग गया। कुछ तो गड़बड़ जरूर थी। Some
Thing was wrong. My chest felt strangely heavy and I sat up. मेरे सीने में कुछ अजीब तरह से भारीपन महसूस होने लगा. मैं बैठ गया. A movement that cleared my nasal passage almost instantly and relieved the feeling in my chest. Cautious, I thought. मैं उठ करके बैठ गया, जिस गति ने लगभग एकदम से मेरी नाक के रास्ते को खोल दिया और मेरे सीने के भारीपन की दशा से मुझे मुक्त कर दिया. बड़ी अजीब बात है, मैं सोचने लगा. आई ले बैक डाउन एंड ट्राइड अगेन. मैं बिस्तर पर लेट गया और फिर से सोने की कोशिश की. सेम रिजल्ट, वही परिणाम. I was on the point of disappearing into the land of Nod when something told me not so. मैं नींद की गोद में चला जाने वाली था कि किसी चीज ने मुझे चेताया कि मैं ऐसा न करूं. It must have been those emergency electrical impulses again, but this was not the same as on previous occasions. This time I was not gasping for breath. I was simply not allowed to go to sleep. वह चीज अवश्य दोबारा से वे संकटकालीन विद्युतीय आवेग रहे होंगे, लेकिन इस बार वे पिछले अवसरों की तरह नहीं थे. इस बार मैं सांस लेने के लिए हाँफ नहीं रहा था, केवल मुझे सोने की का आदेश नहीं दिया जा रहा था. मैं सोच रहा था कि सोऊं नहीं. सिटिंग अप वंस मोर इमीडिएटली मेड मी फील बेटर. एक बार फिर से एकदम उठकर बैठने से मैं बेहतर महसूस करने लगा. आई कुड ब्रेथ फ्रीली एंड माई चेस्ट फेल्ट फाइन. मैं आसानी से सांस ले पा रहा था और मेरे सीने में भी अब कोई गड़बड़ नहीं थी. बट एज सून एज आई ले डाउन माई सिनुसेस फिल्ड एंड माई चेस्ट वॉज ऑड. लेकिन जैसे ही मैं लेटता मेरी श्वास मार्ग मानो भर जाता और मेरे सीने में बेचैनी महसूस होने लगती. आई ट्राइड propping myself upright against the wall, but now I couldn't manage to relax enough to drop off. मैंने दीवार से टेक लगाकर सीधे बैठने की कोशिश की, लेकिन अब मैं इतने आराम की स्थिति में नहीं था कि मुझे नींद आ सके. मैं इस बात का कारण नहीं जान पा रहा था. I couldn't put my finger on the reason, but I was afraid to go to sleep. A little voice inside me was saying that if I did, I might never wake up again. So I stayed awake all night. लेकिन मैं नींद की गोद में जाने से डर रहा था. मैं सोने से डर रहा था. मेरे अंदर एक आवाज कह रही थी कि अगर मैं सो गया तो शायद मैं फिर कभी भी नहीं जाग पाऊंगा. इसलिए मैं रात भर जागता रहा. The town of Hor. They stopped for lunch around 2 o'clock and had hot noodles at a long canvas tent beside at the dark salt lake. By late afternoon, they reached a small town called Hor, where they did adieu to Daniel, who was returning to Lhasa. They also replaced their tires here as they had two punctures in quick succession. The author notes that Hor was a miserable place with no vegetation. It was situated right on the shores of Lake Mansarovar. This was in stark contrast to the experience of previous travelers here who were moved by the sanctity of the lake Mansarovar. The author was also dealing with a blocked nose due to cold, which was making breathing harder than it already was at this altitude. He was also unable to fall asleep and was afraid that if he did, he might never wake up again. Chetan took me to the Dachin Medical College the following morning. अगली सुबह चेतन मुझे डाचिन मेडिकल कॉलेज में ले गया. This medical college at Dachin was new and looked like a monastery from the outside with a very solid door that led into a large courtyard. यह मेडिकल कॉलेज नया ही था और बाहर से किसी मठ जैसा लगता था, जिसमें एक बहुत ठोस दरवाजा था जो एक बड़े दालान में खुलता था. We found the consulting room, which was dark and cold and occupied by a Tibetan doctor who wore none of the paraphernalia that I had been expecting. हमें परामर्श कक्ष मिल गया था जो अंधेरे से भरा तथा ठंडा था, जिसमें एक तिब्बती डॉक्टर बैठा था जिसकी वेशभूषा वैसी नहीं थी और जिसके पास वह साज सामान भी नहीं था जिसकी मैं उम्मीद कर रहा था. No white coat, he looked like any other Tibetan with a thick pullover and a woolly hat. When I explained my sleepless symptoms, जैसे कि मैं उम्मीद कर रहा था उस तरह से वो डॉक्टर नहीं दिख रहा था. उसने सफेद कोट नहीं पहन रखा था. वो किसी भी अन्य तिब्बती व्यक्ति की तरह से नहीं दिख रहा था. वो सामान्य सा तिब्बती व्यक्ति दिख रहा था और उसने एक मोटा ऊनी स्वेटर तथा एक ऊनी हैट पहना हुआ था.
जब मैंने उसे विस्तार से अपनी निद्राहीनता के लक्षण, when I explained my sleepless symptoms and my sudden aversion to lying down, he sought me a few questions while feeling the veins in my wrist. जब मैंने उसे बताया अपनी निद्राहीनता के बारे में, तो अपनी अरुचि के अचानक जाग उठने के बारे में बताया, तो उसने मेरी कलाई की नब्ज को जांचते हुए कुछ प्रश्न मुझसे पूछे। इट इज कोल्ड, ही सेड फाइनली थ्रू जेतन, ये जुकाम है, उसने जेतन के माध्यम से कहा। ए कोल्ड एंड द इफेक्ट्स ऑफ एल्टीट्यूड, और ये जुकाम ऊंचाई वाले स्थानों के प्रभाव से है। आई विल गिव यू समथिंग फॉर इट, मैं इसके लिए आपको कुछ देता हूँ। आई आस्क्ड हिम इफ ही थॉट आई हैड रिकवर एनफ टू बी एबल टू डू द कोरा। ओ यस, ही सेड यू विल बी फाइन। मैंने उससे पूछा कि क्या वह सोचता था कि मेरी तबीयत इतनी अच्छी हो जाएगी कि मैं कोरा कर सकूं। उसने कहा हाँ, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। I walked out of the medical college clutching a brown envelope stuffed with 15 screws of paper. I had a 5-day course of Tibetan medicine which I started right away. मैं एक भूरे लिफाफे को जिसमें कागज की 15 पुड़िया थी पकड़े हुए मेडिकल कॉलेज से बाहर निकल आया। मेरे पास 5 दिन में ली जाने वाली औषधि का क्रम था जिसका पालन मैंने तुरंत ही शुरू कर दिया था। I opened an after breakfast package and found it contained a brown powder that I had to take with hot water. It tasted just like cinnamon. मैंने नाश्ते के बाद ली जाने वाली एक पुड़िया खोली और पाया कि इसमें एक भूरे रंग का चूर्ण था जिसे मैंने गर्म पानी के साथ लेना था। इसका स्वाद बिल्कुल दालचीनी वाला था। The contents of the lunchtime and bedtime packages were less obviously identifiable. Both contained small spherical brown pellets. They looked suspiciously like sheep dung, but of course I took them. That night, after my first full day's course, I slept very soundly, like a log, not a dead man. लंच तथा सोने के वक्त ली जाने वाली पुड़ियों की दवाई उतनी स्पष्टता से नहीं पहचानी जा रही थी। उन दोनों में छोटी छोटी गोलाकार भूरी गोलियां थीं। उनको देखकर भेड़ की लीद होने का शक होने लगता था, लेकिन बेशक मैंने उनका सेवन किया। उस रात को पहले दिन की पूरी औषधि का सेवन करने के बाद मैं बहुत गहरी नींद सोया, लकड़ी के एक लट्ठे के समान, एक मृत व्यक्ति की तरह नहीं। Once he saw that I was going to leave, Zetan left me to return to Lhasa. As a Buddhist, he told me he knew that it didn't really matter if I passed away, but he thought it would be bad for business. जब एक बार जेतन ने जान लिया कि मैं जीवित रहने वाला था, वह वापस लासा जाने के लिए मुझे वहीं छोड़कर चला गया। उसने मुझसे कहा कि बौद्ध होने के नाते उसका विश्वास था कि वास्तव में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था अगर मेरी मौत भी हो जाए, लेकिन उसका विचार था कि वैसी बात उसके धंधे के लिए बुरी साबित होगी। Darchen didn't look so horrible after a good night's sleep. It was still dusty, partially derelict, and punctuated by heaps of rubble and refuse. But the sun shone brilliantly in a clear blue sky, and the outlook across the plain to the south gave me a vision of the Himalayas, commanded by a huge snow-capped mountain, Gurla Mandhata, with just a wisp of cloud suspended over its summit. रात की एक बढ़िया नींद के बाद दार्चेन अब उतना खराब नहीं दिख रहा था। वह अभी भी धूल भरा था, अंशतः मानो त्यागा हुआ था। जहां तहां यहाँ वहां मलबे पड़े हुए थे, कूड़े करकट के ढेर लगे हुए थे, लेकिन साफ निर्मल नीले आकाश में सूरज तेजी से चमक रहा था तथा मैदान को उस पार दक्षिण का दृश्य मुझे हिमालय की याद दिला रहा था। वहां महाकाय बर्फ की चोटी वाला पर्वत गुरला मंदाता था, जहां उसके शिखर पर केवल बादल का एक लच्छा लटका हुआ था। The town had a couple of rudimentary general stores selling Chinese cigarettes, soap, and other basic provisions, as well as the usual strings of prayer flags. In front of one, men gathered in the afternoon for a game of pool, the battered table looking. उस कस्बे में 2-3 छोटी छोटी किराने की दुकानें थीं, जहां चीनी, सिगरेट, साबुन तथा अन्य छोटी मोटी चीजें और साथ ही प्रार्थना झंडियों की हमेशा वाली लड़ियां बिकती थीं। उनमें से एक दुकान के सामने दोपहर में आदमी लोग बिलियर्ड खेलने के लिए इकट्ठे होते थे। उनकी टूटी फूटी मेज खुली हवा में बेहद बेतुकी लगती थी, जबकि नजदीक ही स्त्रियां अपने लंबे लंबे बालों को उस एक तंग सी सरता के ठंडे पानी में धोती थी, जो मेरे अतिथि गृह के सामने से कल कल करती बहती चली जाती थी। Supremely incongruous in the open air, while nearby women washed their long hair in the icy water of a narrow brook that babbled down past my guest house. Darchen felt relaxed and unhurried, but for me it came with a significant drawback. There were no pilgrims.
दार्चेन शांतिपूर्ण था, किसी भी जल्दबाजी के बिना लगता था, लेकिन मेरे लिए उसमें एक भारी कमी थी, वहां कोई तीर्थयात्री नजर नहीं आ रहे थे। I had been told that at the height of the pilgrimage season, the town was bustling with visitors. Many brought their own accommodation, enlarging the settlement round its edges as they set up their tents, which spiled down onto the plain. I had timed my arrival for the beginning of the season, but it seemed I was too early. मुझे बताया गया था कि तीर्थ यात्रा के मौसम में उसके चरम बिंदु पर कस्बा आगंतुकों की भीड़ से भर जाता था। उनमें से बहुतेरे लोग अपने रहने की सामग्री भी ले आते थे, तो उस कस्बे के बाहरी छोरों पर बसने वालों की बस्ती को और भी बड़ा बना देते थे। जब अपने तंबुओं को स्थापित कर लेते और मैदानी भाग तक पहुंच जाते। मैंने तीर्थ यात्रा के मौसम के आरंभ में ही वहां पहुंचने की योजना बना ली थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मैं समय से बहुत पहले पहुंच गया था। One afternoon, I sat pondering my options over a glass of tea in Darchin's only cafe. After a little consideration, I concluded they were severely limited. Clearly, I hadn't made much progress with my self-help program on positive thinking. एक दोपहर को मैं दार्चेन के इकलौते जलपान गृह में बैठा, चाय का एक गिलास सामने रखे हुए अपने विकल्पों पर गहराई से विचार कर रहा था। थोड़ा विचार विमर्श के बाद मैं इस परिणाम पर पहुंचा कि वे ऑप्शंस जो थे अत्यधिक सीमित थे। स्पष्टतः मैंने सकारात्मक पॉजिटिविटी सोच पर अपनी स्वयं की सहायता की योजना में अधिक प्रगति नहीं की थी, अर्थात मैं असफल रह गया था। इन माई डिफेंस, it hadn't been easy with all my sleeping difficulties, but however I looked at it, I could only wait. अपनी आत्मरक्षा में नींद न आने की कठिनाइयों के रहते सब कुछ इतना आसान नहीं रहा था, लेकिन जिस तरह से भी मैं इस बात को देखूं, मैं केवल प्रतीक्षा ही कर सकता था। The pilgrimage trail was well trodden, but I didn't fancy doing it alone. तीर्थ यात्रा की पगडंडी पर बहुत से लोग चलकर गए थे, किंतु मुझे उस पर अकेले ही चलना पसंद नहीं आ रहा था। The Kora was seasonal because parts of the route were liable to blockage by snow. I had no idea whether or not the snow had cleared, but I was not encouraged by the chunks of dirty ice that still clung to the banks of Darchin's brook. Since Zetan had left, I had not come across anyone in Darchin with enough English to answer even these most basic questions. कोहरा इसलिए भी मौसम पर आश्रित था क्योंकि रास्ते के बहुत से हिस्से बर्फ से ढक जाने के कारण बाधित हो जाते थे। मुझे कोई ज्ञान नहीं था कि बर्फ हट गई थी या नहीं, लेकिन मुझे गंदी बर्फ के उन बड़े बड़े टुकड़ों में से कोई प्रोत्साहन नहीं मिल पा रहा था जो अभी भी दर्चन की उस सरिता के तटों से लिपटे हुए थे। जेतन के वापस चले जाने के बाद से मुझे दार्चन में कोई भी ऐसी व्यक्ति नहीं मिल पाया था जो कम से कम इतना अंग्रेजी जानता हो मुझे इस आसान से प्रश्न तक का उत्तर दे सके। Until that, I met Norbu. Getting better. Zetan took the narrator to the Darchen Medical College next morning, where the doctor gave him some medicine and assured him that he would be able to do the Kora. Once he was better, Zetan left to return to Lhasa. Darchen looked better to the narrator now that he was feeling good. The author had timed his arrival to catch the beginning of the pilgrimage season, but there were no pilgrims there, suggesting he was too early. The author didn't want to leave for Mount Kailas alone, as he was not sure if the path was cleared of snow, and he couldn't communicate with anyone as no one spoke English. Understand it? Getting better. Until that is, I met Norbu. अर्थात ऐसा तब तक लग रहा था जब मैं नॉर्बू से नहीं मिला। Dark and cavernous with a long metal stove that ran down the middle. The walls and ceiling were wreathed in sheets of multicolored plastic of the striped variety, broad blue, red and white, that is made into stout, voluminous shopping bags sold all over China and in many other countries of Asia as well as Europe. As such, plastic must rate as one of China's most successful exports along the Silk Road today. अर्थात ऐसा तब तक लग रहा था जब मैं नोरबू से नहीं मिला। वह जलपान गृह छोटा, अंधेरे से भरा और एक गुफा के समान था, जहां एक लंबा सा धातु का एक चूल्हा था जो जलपान गृह के मध्य में फैला हुआ था। दीवारों तथा भीतरी छत बहुत रंगे प्लास्टिक की चादरों से ढकी हुई थी। प्लास्टिक धारीदार किस्म का था, चौड़ा, नीला, लाल तथा सफेद, अर्थात जिसमें पक्के बड़े बड़े आकार के खरीदारी वाले थैले जो चीन तथा एशिया और यूरोप के कई अन्य देशों में बेचे जाते थे, बनाए जाते हैं। इस कारण से प्लास्टिक को आज के समय सिल्क रोड के रास्ते चीन से होने वाले सर्वाधिक सफल निर्यातों में गिना जाना चाहिए। The cafe had a single window beside which I had
taken a position so that I could see the pages of my notebook. I had also brought a novel with me to help pass the time. उस जलपान गृह में एक खिड़की थी जिसकी बगल में मैंने एक ऐसी स्थिति ले ली थी जिसमें मैं अपनी नोटबुक के पन्नों को देख सकूं। मैं अपने साथ एक उपन्यास भी ले गया था ताकि मुझे उस वक्त बिताने में मदद मिल सके। Norbu saw my books when he came in and asked with a gesture if he could sit opposite me at my rickety table. You English? He inquired after he had ordered tea. I told him I was, and we struck up a conversation. नोरबू ने मेरी पुस्तक देख ली और वो अंदर आया और हाथ की इशारे से उसने मुझसे पूछा कि क्या वह मेरी जर्जर मेज पर मेरे सामने बैठ सकता था। क्या आप अंग्रेज हैं? उसने चाय का ऑर्डर देने के बाद मुझसे पूछा। मैंने उससे कहा कि हाँ, मैं अंग्रेज था और तब हमारे बीच बातचीत शुरू हो गई। I didn't think he was from those parts because he was wearing a wind cheater and a metal rimmed spectacles of a Western style. He was Tibetan, he told me, but worked in Beijing at the Chinese Academy of Social Sciences in the Institute of Ethnic Literature. I assumed he was on some sort of field work. मेरा विचार नहीं था कि वह आसपास के किसी स्थान से था क्योंकि उसने एक विंड चीटर तथा धातु के किनारों वाले पश्चिमी शैली वाला चश्मा पहना हुआ था। उसने मुझे बताया कि वह तिब्बती था, किंतु बीजिंग में स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ एथनिक लिटरेचर के अंतर्गत आने वाली चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज में काम करता था। मैंने मन में मान लिया था कि वह किसी किस्म के क्षेत्रीय कार्य पर आया हुआ होगा। Yes and no, he said. I have come to do the Kora. My heart jumped. Norbu had been writing academic papers about the Kailash Kora and its importance in various works of Buddhist literature for many years. He told me, but he had never actually done it himself. When the time came for me to tell him what brought me to Dachen, his eyes lit up. We could be a team, he said excitedly. Two academics who have escaped from the library. Perhaps my positive thinking strategy was working after all. हाँ और नहीं, उसने कहा, मैं कोरा करने के लिए आया हूँ। मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा। नोरबू कई सालों से बौद्ध धर्म के साहित्य के विभिन्न ग्रंथों में कैलाश कोरा तथा इसके महत्व के विषय में शैक्षणिक लेख लिखता आ रहा था। उसने मुझे बताया, किंतु उसने वास्तव में इसे कोरा को स्वयं कभी नहीं किया था। जब उसे यह बताने का समय आया कि मुझे कौन सी चीज दार्चन लाई थी तो उसकी आंखें चमकने लगी। हम एक टीम के रूप में जा सकते हैं, उसने अत्यधिक प्रसन्न होकर के कहा। दो शैक्षणिक व्यक्ति जो पुस्तकालय से निकल भागे हैं, शायद सार्थक सोच कि मेरी योजना आखिरकार सफल होने लगी थी। माई इनिशियल relief at meeting Norbu, who was also staying in the guest house, was tempered by the realization that he was almost as ill-equipped as I was for the pilgrimage. He kept telling me how fat he was and how hard it was going to be. Very high up, he kept reminding me. So tiresome to walk. He was not really a practicing Buddhist, it transpired, but he had enthusiasm, and he was of course Tibetan. नॉर्बू से जो मेरे वाले अतिथि गृह में ही ठहरा हुआ था, मिलने पर मेरी राहत को मेरी पहली भावना में मेरा यह बोध भी मिला हुआ था कि तीर्थ यात्रा के लिए उसके पास भी साज सामान की उतनी ही कमी थी जितनी कि मेरे पास। वह मुझे बताता रहा था कि वह कितना मोटा था और यह कि तीर्थयात्री कितनी कठिन सिद्ध होने यात्रा जो है कितनी कठिन सिद्ध होने वाली थी, बहुत ज्यादा ऊंचाई पर था। वह मुझे याद दिलाता रहा, पैदल चलना बहुत थका देता है। वह वास्तव में बौद्ध धर्म का सख्त पालन करने वाला व्यक्ति नहीं था, यह बात निकल कर आई, किंतु उसके अंदर उत्साह था और निसंदेह वह तिब्बती था। Although I had originally envisaged making the trek in the company of devout believers on reflection, I decided that perhaps Norwood, यद्यप मैंने आरंभ में यह कल्पना की थी कि मैं यह पहाड़ी यात्रा सच्चे श्रद्धालुओं की संगत में करूंगा, गहरा सोच विचार करने पर मैंने इससे किया शायद नोरबू एक आदर्श साथी सिद्ध होगा। The Buddhist companion. The author finally met someone who he could talk to. That was Norbu. Norbu was Tibetan but worked in Beijing at the Chinese Academy of Social Sciences. Norbu had been writing about the importance of Kailash Kora and its importance in various works of Buddhist literature, but had not done the Kora himself. Norbu suggested that they make a team and do the Kora together as two academics out in the field. The author was relieved to have met Norbu, but his relief was tempered by the fact that Norbu himself was inexperienced. Although the author had initially thought to make the pilgrimage in company of devout pilgrims, he decided that perhaps Norbu would be the ideal companion. Turned out to be the ideal companion, he suggested we hire some yaks to carry our luggage, which I interpreted as a good sign, and he had no intention of prostrating himself all round the mountain.
Not possible, he cried, collapsing across the table in hysterical laughter. It was not his style, and anyway, his tummy was too big. उसने परामर्श दिया कि सामान ले जाने के लिए हम कुछ याक पशुओं को किराए पर ले लें, जिसे मैंने एक शुभ संकेत के रूप में लिया, तो उसका जरा सा भी इरादा नहीं था कि वह दंडवत होकर पर्वत के चारों तरफ परिक्रमा करे। यह संभव नहीं है। वो चिल्लाया और दौरा पड़ने जैसे ठास के साथ मेज पर के आर पार ढेर हो गया था। वह उसकी सामान्य शैली नहीं थी, और कुछ भी हो, उसकी तोंद बहुत बड़ी थी। Dear students, thank you very much for watching the video presentation. Thank you.